Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 8th math subject. Today we will discuss about the practice sheet number 6 and the first sum that is flashing on your screen. It is the sum of two numbers is 95. If one exceed the other by 15, then find the smaller number out of these two. ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 15 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋੜਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ 95। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ x ਪਲੱਸ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੋ 2x ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 15 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 95। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹ 15 ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ 95 ਮਾਈਨਸ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 80 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 80/2 ਬਰਾਬਰ 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ x मतलब इक्वल टू 40 आ रहा, तो यही ਇਹਦਾ आंसर हैगा। ठीक है, जे ਵੱਡੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ 55 ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ 121 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ x ਜਮਾ ਅਸੀਂ 16 ਬਰਾਬਰ 121 ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 121 ਮਾਈਨਸ 16 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 105 ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 105 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ x ਜਮਾ 16 ਬਰਾਬਰ 121 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 105 ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਟਰੂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਲ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਲ ਰੋਮਬਸਿਸ ਆਰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਰੇ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਨਸ ਆਲ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोर्थ ऑप्शन है सारियां पतंगा सम चतुर्भुज ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, मीनस ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो विद्यार्थियों यही ਇਹਦਾ आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये गलत हैगी है। ठीक है, ये सही नहीं हैगा। सो प्यारे विद्यार्थियों नैक्सट फोर्थ सम है रेंट एक आयत दी हुई है, मतलब एक तुहानू रैक्टेंगल दी हुई है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਕਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TE ਦੀ ਵੈਲਿਊ RN ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ TE ਦਾ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ TO ਤੇ ਇਧਰੋਂ RN ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ RO। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ OT ਦੀ ਜਾਂ TO ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ x+1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ RO ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ 2x+4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 3x - 2x x ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੱਢ ਦਿਓ ਬੱਚੋ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2x ਜਿਹੜੇ ਆ 3x ਚੋਂ 2x ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਆ ਐਂਗਲ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 540 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ? 540। ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ
इस इमेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਥਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੋ 90 डिग्री ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ डिग्री ਦਾ? 90 डिग्री ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ? 540। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। किस तरह करांगे? मैथ्स का एंगल हैगा 90 डिवाइड बाय टोटल एंगल ये बच्चों हुंदा है 360। ठीक है, उन्हें डिवाइड कर देनी है क्योंकि अंक कढ़ने हैं, इस करके अंकों की गुणा होएगी तो एंगल की डिवीजन होएगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों 0 ना 0 इत्थे कट रहा। 9 चौका 36, 54 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 540 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 125। ठीक है, 125 अंक ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 70। ਠੀਕ ਹੈ, 70 ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ 70 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਅਗੇਨ 360 ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਟੂ 540 ਚੋ ਇੱਥੇ 18 ਦੂਣਾ 36 ਤੇ 18 ਤੇ 54 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 7 ਤੇ 21 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 210 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 105। ਠੀਕ ਹੈ, 105 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? डिफरेंस पूछा 125 माइनस 105, ये बच्चों बनया कितना 20 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 20 का डिफरेंस इत्थे आ रहा, तो आंसर इहदा सैकेंड ऑप्शन आएगी। ठीक है, इन्ना बच्चों ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 6th ਸਮ ਹੈਗਾ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਔਡ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ? ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 726, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆ 158, तीसरी हैगी आ 269 ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ 1980। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 1s ਪਲੇਸ ਦੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਦੀ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, 8 ਵੜਿਆ 64 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ 81 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ 0 ਦੀ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 0 ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੋ 9 ਆਇਆ 81 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 269 ਕਿ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਔਡ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 7th ਸਮ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆ ਕਿ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਪੈਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਰੁਪਏ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ 500 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਗਏ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਬੱਚੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਆ 100 ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ, ਤਾਂ 1/100 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। 8th ਸਮ ਹੈ कि वाहिदा बॉट एन एयर कूलर फॉर 3300 रुपीज़ इंक्लूडिंग वैट। वैट का मतलब बच्चों वैल्यू एडिड टैक्स होंगे। ठीक है, जिस दी परसेंटेज हैगी 10%। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वर एडिड। मान लो प्यारे विद्यार्थियों एयर कूलर का मुल विदाउट वैट ठीक है वो हैगा X रुपीज़। ठीक है, कितना हैगा X रुपीज़, तो X रुपीज़ से बच्चों 10% की लग रहा है वैट। ठीक है, तो ये असी ऐड कर देना है बराबर टोटल मुल उन्होंने कितना मिले 3300 रुपए का उन्होंने कूलर जोड़ा वो मिलया है। ठीक है, तो इन्हों एक्स लिए सॉल्व कर लो, तो किदा सॉल्व करोगे? सिफर ना सिफर इतने कट दो, तो ये बन गया बच्चों X बाय 10 इक्वल टू 3300, तो ये बन गया बच्चे 11X बाय 10 इक्वल टू 3300। ठीक है, 11 तिया 33 बच्चों, तो यदा मतलब ये आ रहा इतों 300, तो 300 की बच्चों 100 10 ना गुणा कर दो, ये बन गया 3000 रुपए। ठीक है, तो वह मुल जोड़ा है एयर कूलर का कितना बन रहा 3000 रुपए सैकेंड ऑप्शन। ठीक, प्यारे विद्यार्थियों 9th सम है साढ़े को 3 वैल्यूज़ ने ए, उस तो बाद ए माइनस ए रेस टू पावर 2 इंटू ए रेस टू पावर 3। ठीक है, इन्हों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। इत्थे बच्चों इन्होंने वैल्यूज़ के जोड़े बेस है वो सेम है। ठीक है, उन्होंने असी एक बार लिखांगे तो जड़ियाँ पावर्स है उन्होंने असी ऐड कर देंगे, तो ये सानू प्राप्त होएगा माइनस ए रेस टू पावर 6। ठीक है, तो यदा आंसर थर्ड ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों 10th हैगा, ये की है कि असी 303 की 307 नाल गुणा करनी है। बच्चों गुणा तो असी आराम नाल कर सकते हैं, पर जे असी इनू होर ईजी करना होवे तां असी इनू किद्दां लिखांगे 300 जमा 3 गुणा 300 जमा 7। ठीक है, हुण इत्थे ये फार्मूला नहीं बन रहा x प्लस ए
इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, यही फार्मूला बन रहा ना, जो कि बराबर सीगा एक्स स्केयर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये फार्मूला बच्चों किहड़ा हैगा इत्थे देखो, ये 4th ऑप्शन हैगी आ, तो यही इत्थे अप्लाई होएगा तो ये असीं ईजली ਇਹਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 300 ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਜਮਾ 7 ਗੁਣਾ 300, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾ 3 ਗੁਣਾ 7। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दैट। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 11th ਸਮ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਬॉडी ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖੂਗੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟॉप ਵਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਟॉप ਇਹ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀ टॉप ਵਿਊ, ठीक है। ये की आना सी टॉप व्यू, ओके। 12th क्वेश्चन हैगा बच्चों, एक इस तरह के वेलन की उचाई पता करो जिसका अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, कुल सतह का खेत्रफल बच्चों इत्थे दिता होया। सो मतलब असी इत्थे एक वेलन है, वेलन मतलब सिलेंडर, वो असी हाइट पता करनी है विद्यार्थियों। ये हाइट हो गई, ये दा अर्ध व्यास हो गया, ठीक है, जो कि तुहानू दिता होया है। आर की वैल्यू कितनी दिती है 7 सेंटीमीटर, तो तुहानू दिता है इत्थे इसकी कुल सतह का खेत्रफल। बच्चों कुल सतह का खेत्रफल का मतलब होंदा है इसकी पासवीं सतह का खेत्रफल बनता है 2 पाई आर एच, ठीक है। की होंदा है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मतलब ये फार्मूला आया कित्थों, ए दी लेंथ होगी क्योंकि सरकमफ्रेंस हो जाना, तो हाइट ਇਹਦੀ की होगी चौड़ाई, ठीक है। L इंटू बी ਇਹਦਾ खेत्रफल ही बनता पिया। तो विद्यार्थियों इत्थे कुल सतह जी है एक चक्कर 2 बनते पे, चक्कर का खेत्रफल पाई आर स्केयर होंगे, तो ये बन गया 2 पाई आर स्केयर, ठीक है। ये असी 2 पाई तो आर नू कॉमन कढ़ लीए, ये सानू मिलेगा आर प्लस एच, ठीक है। ये पासवीं ये होगी कुल सतह का खेत्रफल जो कि तुहानू किहदे बराबर दिता है 968 सेंटीमीटर स्केयर दे, ठीक है। तो इनू असी हुण सॉल्व करना है, ठीक है। किहदे लई एच दे लई सानू इत्थों एच फाइंड आउट हो जाएगी। तो पाई की वैल्यू 22/7 लै लैनी है, आर तुहानू 7 दिता होया, आर की वैल्यू इत्थे 7 पुट कर दिओ सारे बच्चे। तो विद्यार्थियों इत्थे एच आ जाएगा इक्वल टू 968। ये 7 ना 7 कट गए, ठीक है। ये 44 जिहड़े ने ये विद्यार्थियों 968 नाल भाग हो जाएंगे, तो इत्थों सानू प्राप्त होवेगा 22, ठीक है। की मिलेगा 22, तो एच की वैल्यू बच्चे 22 - 7 एक ये बराबर आ गई। आर की वैल्यू इत्थे 7 सी, 22 - 7, ठीक है, वो माइनस कर देनी है, तो तुहानू प्राप्त होएगा 15, ठीक है। तो यदा 15 आंसर जिहड़ा आएगा। किहड़ी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगला बच्चों 13th सम है, ये बच्चों पासवीं सतह का खेत्रफल पूछा है। पासवीं सतह का खेत्रफल हुणी दस के हटिया सी है जाना 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यदा आंसर आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो प्यारे विद्यार्थियों 14th सम है कि इसकी वैल्यू असी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वैल्यू कि फाइंड आउट करनी है, ये 2 रेज़ टू पावर -1 इंटू 4 रेज़ टू पावर -1 ब्रैकेट में लिखा है। अगे बच्चों भाग का निशान है, डिवाइड का निशान 2 रेज़ टू पावर -2। तो सब तो पहला असी ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे। तो एक ही बन गया 1/2, ठीक है, क्योंकि पावर माइनस विच आ तो जी वैल्यू आ थले चले जाएगी, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/4 जो डिवीजन का साइन है, ठीक है, इनू हले इदा ही रहन दो। तो इनू बच्चों 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब ये एक तरह का 1/4 ही आ गया, ठीक है। तो विद्यार्थियों अगले स्टैप में मैं की करूँगा इत्थे इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज कर देंगे। जी 2 रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 1/4 हैगा, ये बच्चों 4 उपर चले जाना, नीचे आ जाना 1, ठीक है। रिमेंबर भाग के निशान को असी गुणा च बदल लेना, थले वाली वैल्यू उपर चली जाएगी, उपर वाली थले आ जाएगी, ठीक है। सो इत्थे 4 ना 4 कट रहा, तो बचिया की बच्चों 1/2 यही इसका आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट बच्चों 15th सम है कि असी 15th सम है 16 रेज़ टू पावर -3 नू असी 4 की पावर में लिखना है। विद्यार्थियों सानू पता 4 × 4 16 होंगे ने, ठीक है। तो विद्यार्थियों असी 4 नू किद्दां लिख सकते हैं, 4 रेज़ टू पावर 2 उपर हैगी पावर -3, ठीक है। तो विद्यार्थियों इत्थे रूल लगेगा कि एक घात की दूसरी घात नाल गुणा हो जाती है, तो 4 की पावर 3 दूनी कितना आ गया 6, तो यह आ गया 4 की पावर -6 आंसर इत्थे आ जाएगा, ठीक है। पावर दी पावर ना मल्टीप्लीकेशन, ये फार्मूला याद रखो, x रेज़ टू पावर m इंटू n किहदे बराबर होंदा है, x रेज़ टू पावर m इंटू n, ठीक है। ये फार्मूला सारे बच्चों ने याद रखना है।
उस तो बाद बच्चों असी 16 सम दे विच m की वैल्यू लिए इनू सॉल्व करना है। इत्थे हैगा 5 रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर -3 इक्वल टू इत्थे हैगा 125, ठीक है। -3 इत्थे हैगा इक्वल टू 125 दे। तो विद्यार्थियों सब तो पहला काम की है, भाग नूं गुणा दे विच बदलना। तो इनू पहला तुसीं की है भाग नूं थल्ले ले आओ, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा कुछ 125, ठीक है। हुण ये की करना, इनू हुण असीं उपर लैके जावांगे तो ये आ जाएगा बच्चे 5 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। प्लस दे कर दिओ। और 25 नूं असीं किद्दां लिख सकते हैं, 125 नूं 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 की पावर कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई, ठीक है। हुण इत्थे आधार बराबर ने, इहदियां पावर जिहड़ियां ने वो ऐड हो जाणगियां। 5 रेज़ टू पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो असीं घातां नूं बराबर कर देना दोनों साइड ते। 3 नाल 3 कट रहा तो m की वैल्यू बच्चों इत्थों 0 आ गई, ठीक है। सो विद्यार्थियों 16 सम दे विच की होया, 5 रेज़ टू पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3 सीगा। असीं जिहड़ियां पावर्स नहीं उन्होंने बराबर कर दिता, इक्वेट कर दिता, क्योंकि आधार दोनों के बराबर सीगे। तो 3 नाल 3 कट के m की वैल्यू सानू 0 प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये सीगा क्वेश्चन नंबर 16 जिहदा आंसर 0 आ रहा सी, ठीक है। 15 का फर्स्ट आंसर सी, 16 का भी फर्स्ट हैगा। अगला बच्चों म्यारी रूप च लिखना है, बड़ा ईजी है। सिर्फ और सिर्फ तुहानू इत्थे वैल्यूज़ दे और एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। रूल पता होना चाहिए किस तरह असीं करते हैं। जो असीं पॉइंट नू राइट साइड वाल लैके जाने उदों पावर जिहड़ी आ बच्चों माइनस विच वधदी है, ठीक है। तो इत्थे एक पॉइंट अगे गया, 2 3 4 5 पॉइंट अगे गया तो 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, ठीक है। 10 की पावर असीं माइनस विच लिखांगे, माइनस च वधूगी, 10 की पावर -5 ਇਹਦਾ आंसर मतलब सैकेंड ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन हैगा 18th, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि रेल गड्डी है, ट्रेन आ मूविंग विद यूनीफॉर्म स्पीड, ਉਹਦੀ स्पीड ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है कितनी बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर, और बच्चों नाल ਦਿੱਤਾ है टाइम 20 मिनट। देखो इत्थे आवर्स ने, इत्थे मिनट आ। पहला काम यही करो कि ਇਹਦੀ मिनट नूं आवर्स च कन्वर्ट कर लो, सब तो सौखा काम यही हैगा, ठीक है। तो 0 ਨਾਲ 0 कट गई, 1/3 ये आवर्स आ जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी कितने होंगे ने 6, ठीक है। 1/3 घंटे हो गए, समा मिल गया। सानू पता स्पीड होंगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, असी कढ़ना बच्चों डिस्टेंस इत्थे, तो स्पीड की गुणा कर देनी आ टाइम के नाल। स्पीड हैगी आ 75 तो समा हैगा 3, 1/3। तो विद्यार्थियों इत्थे की 25 × 75 बन रहा, ठीक है। तो 25 आंसर इहदा आ जाएगा, मतलब हम 25 किलोमीटर दूरी जिहड़ी आ तय करनी हैगी। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 19 दे विच की हैगा, इनू असीं इहदे गुणनखंड बनाने ने। इत्थे Z-7, ठीक है। इहदे विचों बच्चों असीं 1 नूं कॉमन कढ लईए, आ गया Z-7 इंटू 1 प्लस इहदे विचों देखो X ਤੇ y ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो एक्स वाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਾਈਨਸ z, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ z-7 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -xy, ਠੀਕ ਹੈ, z-7, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ z-7 ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, तो ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 - xy ਤੇ z-7। ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਏ ਨੇ। ऑप्शन नंबर ਕਿਹੜੀ है 3rd, ठीक है। क्वेश्चन हैगा कि एक डाकिया किसी शहर दे कोल ही पैंदे एक कस्बे विच एक व्यापारी कोल पार्सल पहुँचाउण लई साइकिल ते जांदा है। वख-वख समय ते शहर तो उस दी दूरी हेठां दिते ग्राफां अनुसार दर्शाई गई है, ते ग्राफ दे अध्ययन करके पता करो कि एक्स धुरे ते समय दर्शाउण लई की पैमाना वरत्या गया है। बच्चों की पैमाना है, ये देखो समा इधर है एक्स एक्सिस के वाल, ठीक है। पैमाने दे विच देखो इत्थे बच्चों 8 बजे ने, ठीक है। स्टार्टिंग 8 बजे शुरू की तो 9 बजे किन्ने देखो ये डब्बे तुहानू दिख रहे हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, ठीक है। तो यदा मतलब 1 घंटा 4 इकाइयां के बराबर इत्थे हैगा है। फर्स्ट ऑप्शन ये आ रही हैगी है। जो नैक्सट सम करते हैं 21, ये है हेठा लिखिया विचों किहड़ा कथन गलत है। तो विद्यार्थियों पहला तो हैगा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंदे हन, मतलब कोआर्डीनेट ऑफ ओरिजिन। बच्चों मैं ग्राफ इत्थे शो किया होया, देखो ग्राफ दे विच इहदा ओरिजिन हैगा, ओरिजिन दे विच एक्स की वैल्यू भी 0 होंदी है तो वाई की वैल्यू भी 0 होंदी है। तो ओरिजिन दे कोआर्डीनेट एक्स वाई होंदे हन, ये तो ऑप्शन सही हैगी है, ठीक है। किसी कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देश 0 होवे, ठीक है। कोई भी बिंदु ले लो बच्चों जिसका एक्स निर्देशांक कितना आ 0 आ, तो वाई कोई भी वैल्यू ले लो
मान लो असी 3 लै ली, ठीक है। तो उन्होंने ड्रॉ करना होवे तो देखो एक्स एक्सिस ते 0 आ जाना, वाई ते वो कित्थे जाएगा 3 पॉइंट आ बनया, ठीक है। तो ये बनया 0,3, ठीक है। तो यदा मतलब वो वाई धुरे ते स्थित होएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही हैगी आ। अगला क्वेश्चन हैगा कि अगली ऑप्शन है कोई बिंदु जिसका वाई निर्देशांक 0 है, ठीक है। हुण वाई 0 लै लो तो एक्स की वैल्यू नूं 3 मान लो, तो विद्यार्थियों वाई जदों 0 होएगा तो एक्स 3 होएगा, तो बच्चों इत्थे ये निर्देशांक बनया, इहनूं किद्दां लिखांगे 3 0, ठीक है। जिहड़ा कि एक्स एक्सिस ते आ रहा, इत्थे उन्होंने कहा कि वाई धुरे ते स्थित हुंदा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हैगी है, यही आंसर इहदा आएगा। लास्ट विच की है कि निर्देशांक 3 4 4 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੋ 3 4 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਬਣਿਆ 3 4, ਤੇ 4 3 ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੋ ਆ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 4 ਤੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਏ, ਓਕੇ। तो इस तरह बच्चों इन्नी सोच समझ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो थर्ड आंसर जिहड़ा इहदा आएगा। प्यारे विद्यार्थियों 22 सम हैगा हेठा लिखी गुणा विच ए ते बी दे मुੱਲ जो पता करने आ। तो विद्यार्थियों इत्थे अंदाजा लगा सकते क्योंकि तुहानूं ऑप्शन दित्तियां होईयां ने, ठीक है। तो असीं अंदाजे नाल ही ये आंसर जिहड़ा कर देना है बी बी बी, इहदा मतलब ये आंसर जिहड़े ने इहदे विच इत्थे सारे अंक बराबर ही होणगे, ठीक है। बी दी वैल्यू कितनी है, मान लो 4 ले लैंदे असीं, फर्स्ट ऑप्शन ही देख लैंदे आ। तो इत्थे ए का मुੱਲ 7 पुट कर दिओ, बी का वैल्यू बच्चे 4 पुट करते हैं, 6 चौका 24, 7 छीक 42 ते 2 44। तो विद्यार्थियों पहली ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी देखने की जरूरत नहीं हैगी क्योंकि इत्थे उपरोक्त 2 वगैरह कुछ नहीं। इत्थे प्यारे विद्यार्थियों नैक्सट सम 23 एक समकोणी त्रिभुज है जिहदे विच विद्यार्थियों राइट एंगल ट्रायंगल दित्ती है, जिहदे विच एंगल राइट एंगल कित्थे आ बी, ठीक है। बी राइट एंगल हैगा जिहदे विच ए बी की वैल्यू बच्चों तुहानूं दित्ती हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दित्ती है 6 सेंटीमीटर, तो ए सी की वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर दित्ती है। बी सी की वैल्यू असीं फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जिहदे विच करण दा वर्ग आधार दे वर्ग ते लंब दे वर्ग दे बराबर हुंदा, मतलब हाइपोस्केयर इक्वल टू किहदे इक्वल हुंदा बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, ठीक है। तो बच्चों ए सी की वैल्यू इत्थे 10 की पावर 2 बराबर ए बी की वैल्यू 6 की पावर 2 माइनस प्लस बी सी की वैल्यू असीं फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इहदी पावर असीं कितनी लवांगे स्केयर पावर मतलब 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 10 10 है 100, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 64, ਤੇ 64 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਦਾ ਵਰਗ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਦਿਓ, बी सी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ਕਿਹੜੀ ऑप्शन आ रही है हैगा 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या पता करो जो पूर्ण घन होवे। इत्थे बच्चों परफेक्ट क्यूब दस्या है। सब तो पहला तो देखो 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या तो 1000 होंदी है, सारे बच्चों को पता होएगा, ठीक है। असी प्यारे विद्यार्थियों 1000 के गुणनखंड बनाने ने, ठीक है। तो 1000 के गुणनखंड बनाओगे तो विद्यार्थियों इत्थे देखो जो तुसीं गुणनखंड 10 नाल ही बना लो तो 10 गुणा 100 1000 बन गया, 10 ਦਾ 100 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੀ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 1000 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਣਾ ਸੀ ਫਿਰ, ठीक है। हुण वो की आना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ इदां ही गुणनखंड बनाने पैने सी। ਇਹਦਾ वर्गमूल ਲੈ ਲਓ, 2 तरीके ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ वर्गमूल ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ वर्गमूल करना ਅਸੀਂ जोड़े बना ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 3 9 ਇਹ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। इत्थों 1 ते 0 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ नीचे आ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਦਾ ਅਸੀਂ डबल कर ਦਿੱਤਾ, ਇਹ बन गया 6, तो 6 एकम 6, ठीक है। तो इत्थे आ जाएगा बच्चे 61 अगर आ गया तो थल्ले बचते ने 39, ठीक है। थल्ले की बचे 39 बचे। जे तुसीं 39 नूं इहदे विच माइनस करदे आ तो बच्चों 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या विच बदल जाएगी, ठीक है। तो ये तो आना नहीं, ठीक है। तो क्योंकि तुहानूं जोड़ दा पुछया होया तो 31 का स्केयर हुण साडे कोल किन्ना आया, 31 का स्केयर इत्थे आ रहा 961, ठीक है। 961 तो बच्चों 32 का वर्ग जिहड़ा है, ये तो अगली संख्या का वर्ग भी असीं नाल ही लिखना, वो हुंदा 1024, ठीक है। किन्ना हुंदा 1024, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ऐड होए, किन्ने ऐड होए कि 1024 माइनस 1000
बराबर ये कितना बच गया बच्चे 24, तो 24 असी 1000 च ऐड कर दईए तो साढ़े को परफेक्ट स्केयर बन जूगा फिर वो, ठीक है, जिहड़ा कि 4 डिजिट नंबर होएगा, ठीक है। तो जे परफेक्ट स्केयर पूछा होंदा फिर 1024 आंसर आना सी, क्योंकि परफेक्ट क्यूब पूछा है 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या, तो वो आना सी बच्चों 1000। नैक्सट विद्यार्थियों सम 25 है कि एक चतुर्भुज आ उहदी विकर्णा की लंबाई दिती है बच्चों। सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस, तो रोम्बस के विकर्ण बच्चों इत्थे दिते ने, एक 7.5 है तो दूसरा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर ची ने। तो विद्यार्थियों एरिया का फार्मूला आंदा 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूजा विकर्ण, ठीक है। तो 1/2 गुणा 7.5 गुणा 12, 6 दूनी किन्ने हो गए 12, ठीक है। 7.5 की तुसी गुणा कर दो 6 के नाल हो जाएगी ईजिली, ठीक है। तो विद्यार्थियों का आंसर जोड़ा है वो आना है 45, ठीक है, 45 सेंटीमीटर स्केयर इसका आंसर आएगा, सैकेंड ऑप्शन। ओके जी। अगला 26 क्वेश्चन है, एक आयत दी है जिसकी लंबाई बच्चों कितनी दी है 2AB, तो चौड़ाई जी है वो दी हुई है विद्यार्थियों इतने 3BC, ठीक है, कितनी है 3BC। तो असी कढ़ना यदा एरिया, एरिया का फार्मूला होंदा है लेंथ इंटू ब्रैथ, ठीक है। तो लेंथ आ गई 2AB इंटू 3BC, 3 दूनी 6, ए कला B 2 बार है उन्दियां पावर ऐड कर दियो, तो B की पावर 2 इंटू C, तो ये बन गया 6AB स्केयर इंटू C, तो आंसर आ रहा थर्ड ऑप्शन। प्यारे विद्यार्थियों 27 है जिहदे लेंथ जी है वह भी रेक्टेंगल ही है, जिहदी लेंथ x+5 दी है, तो विद्यार्थियों जी ब्रैथ हैगी है x-5 दी है। असी इहदा कढ़ना पैरीमीटर, पैरीमीटर का मतलब होंदा है ਇਹਦਾ परिमाप कढ़ना है। तो परिमाप का फार्मूला 2 इंटू L प्लस B होंदा है, ठीक है। इत्थे लंबाई x+5 तो चौड़ाई बच्चों x-5, ठीक है। तो 5 ना 5 कट रहे, x जमा x 2x आ गया, तो ये बन गया 2 दूनी 4, 4x इसका आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर 4th। नैक्सट प्यारे विद्यार्थियों 28th क्वेश्चन है कि एक बिस्किट बेचने वाली कंपनी बिस्किट पैक करने लई ਵੱਖ-ਵੱਖ विमानां दे घणाकार डब्बियां का उपयोग करती है। एक ए डब्बा बच्चों ए आ ते आ हैगा बी डब्बा, ठीक है। इन्हां दी लंबाई चौड़ाई बच्चों दिती है, ए डब्बे की लंबाई हैगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो चौड़ाई हैगी 8 सेंटीमीटर, तो उचाई जी 20 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो जो दूसरा डब्बा बी टाइप का है वो बच्चों इन्हां दी लंबाई 4 है, चौड़ाई 12 हैगी है, तो उचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो विद्यार्थियों उन्होंने पूछा कि किहड़े डब्बे विच बिस्किट पैक, किहड़ा डब्बे विच ज़्यादा बिस्किट पैक हो सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कैन कंटेन दी मोर बिस्किट्स। तो विद्यार्थियों जो क्वांटिटी की गल आती है उदों आता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो आयतन की है लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट, तो यदा आयतन जो जो मल्टीप्लाई करोगे सारिਆਂ ਨੂੰ, ये लेंथ है, आ ब्रैथ हैगी है, हाइट हैगी है, ठीक है। लेंथ सारिਆਂ ਨੂੰ पता 3, इत्थे 8 आ B, ठीक है, इत्थे 4, ये 12 तो आ हैगी 10, ठीक है। सो इन्हां दी गुणा कर दिओ तिन्नां दी, जो तुसीं तिन्नां दी गुणा करोगे तो ए बॉक्स का आयतन तुहानूं मिलेगा 8 × 24, 24 दून 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो दूसरी साइड पर बच्चों जो तुसीं गुणा करोगे 12 चौक 48 होंदे आ, इत्थे भी बच्चों 480 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, मतलब आयतन तो बराबर आ गया। तो दोनों विच बच्चे समान जिहड़े बिस्किट आने हैं, तो दोनों बक्सियां की समर्था बराबर हैगी, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर आऊगा। जो 29th सम है ये की है कि एक संख्या है, उस संख्या तो एक संख्या 30% घट है x-30%। तो जो तुम 30% यदा करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 70/100 x मतलब 7x/10, ठीक है। तो दूसरी संख्या जी 40% घट हैगी आ, तो वो बच्चों बन जाएगी फिर कितना आ जाएगा इत्थे 60x/100, ठीक है, मतलब 6x/10, ठीक है। हुण ये दोनों संख्या आपस दे विच किन्ने प्रतिशत घट हैं, तो वो कढ़ना होवे तो असीं की करांगे इत्थे डिफरेंस कवांगे 7x/10 माइनस 6x/10, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये सानूं प्राप्त होएगा x/10, ठीक है। तो हुण असी परसेंटेज कढ़नी है, परसेंटेज में की करांगे डिफरेंस डिवाइड बाय किहड़ी संख्या तो देख रहे हैं असी फर्स्ट वाली तो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू 100, तो इत्थे बच्चों डिफरेंस आ रहा x/10 और फर्स्ट नंबर आ रहा 7x/10, ठीक है, इंटू आ जाएगा 100, 0 10 ना 10 कट जाने, x ना x कट जाएगा, ये आ जाएगा 100/7 और 100/7 जोड़ा है बच्चों ये आएगा 14 ×
2/7%। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 4th ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। 30th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ मतलब ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 2 3 5 7 11 13 14 17 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਿਰ 23 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 29। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ मतलब ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। तो 29 - 2 ਜਿਹੜਾ 27 ਆਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 6 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂਅਰ ਨੈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।